potential, how to take. So ये जो है, this is our first part of our 5-part empowerment series. So this में जो है ये this is the first part. And in this workshop, we will explore the key elements that disempower us and how they impact our behavior. उसके बाद जो बाकी 4 हमारे होंगे workshops, so उसमें फिर then we will learn how to cope with them, how to overcome them और strategies जो हैं. So आज जो है, before knowing how, we will explore why we have disempowering patterns and everything. So इस तरह से today's जो workshop है, this is will further set the stage of personal growth and empowerment. हमारी जो next workshop होगी. Please turn off your microphones, please. Before going further, I would like to introduce जो हमारा academy है. So the Optimum NutraFit Academy is a MedicPro International Academy approved center. Or Dr. Seher Taskeen is a CEO of Healthcare Professional of Optimum NutraFit Academy. So उनका जो vision था was to establish a holistic platform जो कि consolidate करे जो comprehensive सब information है and services है for physical and mental well-being. So ये जो organization है, जो academy है, ये provide करती है awareness through conducting webinars, programs, consultations for non-professionals. और डॉक्टर सहर का जो एंटरप्रेन्योरल विजन था उनका ये था कि वाज टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे दैट नॉट ओनली सर्व द कम्युनिटी बट आल्सो एम्पावर यंग प्रोफेशनल्स इन दिस फील्ड बाय प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, फॉस्टरिंग ग्रोथ एंड जो नेक्स्ट जनरेशन को नर्चर करना, जो हमारे हेल्थ केयर लीडर्स हैं. हमारी जो है अकेडमी डॉक्टर्स टीम है, डॉक्टर आयशा मसरूफ है, डॉक्टर नसीम खान है, डॉक्टर आयशा सज्जाद, शाहिदा मेमन, डॉक्टर समन शौकत, फरहाना अली हैं, फातिमा सज्जाद, इशरत फातिमा, मरियम खालिद, राबिया इकरार एंड शहरयार आयशा. I am not a doctor, but I'm included here. So I would like Ali to introduce himself. Ali, please go ahead. Hello everyone, myself Muhammad Ali Imran, a dedicated nutrition student, currently enrolled in the esteemed Optimum NutriFit Academy as a host under the expert guidance of renowned dietitians and other clinicians as well. I'm owning my knowledge and skills in nutrition science. And here is the team of our volunteers who are also working in our academy and providing services. Thank you so much. Yeah. Thank you, Ali. So, before we talk about how to empower ourselves, let's start by understanding कि what is holding us back. क्या वजूहात हैं, क्या चीजें हैं, कौन से फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स हैं जो हमें डिसएम्पावर करते हैं एंड वी फील स्टक. ठीक है. सो दीज आर सम कॉमन पैटर्न्स जो कि विच होल्ड अस बैक, एंड इससे भी ज्यादा होंगे, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स. सो जिसमें कि अब हम इनको लेट्स ब्रेक देम डाउन. सो टू नो कि मेरे डिसएम्पावरिंग पैटर्न्स क्या है, सो आई विल टेल यू फ्रॉम माय ओन क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो मेरा क्लाइंट के साथ वर्क रहा है. व्हेन क्लाइंट्स कम टू मी, दे इवन डोंट नो द रीजन, दे हैव नो आइडिया कि why am I not achieving my goals, why my relationship is not nurturing, मेरी relationship में problems क्यों है, मैं struggle क्यों कर रहा हूँ, या studies में, या job में, workplace पे. So it is very important कि recognize the signs कि क्या है. And बाज़ औक़ात some people say कि there is no problem with me, या there is nothing wrong with me, but then so उनके जैसे कि self sabotaging behavior होते हैं. सो उनमें से जैसे एक है, अब इसके जो रीजंस होते हैं, बाज ये है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमारे होते हैं, कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारे बिलीव्स और बिहेवियर को शेप करते हैं. अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई बच्चा जो है वो स्कूल में बुलीड हुआ हो, और जब वो व्हेन ही विल ग्रो अप, जब वो अपनी एडल्ट लाइफ में आएगा, ही माइट स्ट्रगल विथ सेल्फ डाउट, लो सेल्फ एस्टीम,
या कोई ऐसा बच्चा जो है जो ऐसे एनवायरनमेंट में अपब्रिंगिंग हुई हो जहाँ पे पेरेंट्स जो है बहुत प्यूनिटिव हैं, मतलब सजा देना, मारना, अथॉरिटेटिव हैं। सो बच्चे की कोई मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता, सो दैट चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी फियरफुल ऑफ अथॉरिटी फिगर्स। अब वो अपने बॉस से जो है बात नहीं कर पाएगा, या कहीं सुपरवाइजर से बात नहीं कर पाएगा, किसी प्रोफेसर से, इस तरह से। सो वो फिर हमारे जो है वो डिसएम्पावरिंग पैटर्न्स बन जाते हैं। सो दूसरे ट्रोमेटिक इवेंट्स होते हैं किसी के चाइल्डहुड में, किसी के जो है इवन एडल्ट लाइफ में आ सकते हैं। बाज का कार एक्सीडेंट हो गया एंड देन दे हैव फियर ऑफ ड्राइविंग द कार। बाज का जो है, बाज बच्चे दे ग्रो अप इन अब्यूजिव एंड वायलेंट इन्वायरमेंट, तो उनके अंदर व्हेन दे ग्रो अप दे हैव एंजाइटी, फियर, पावरलेसनेस। ओ मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं, आई कांट डू दिस। तो वो इस नैरेटिव के साथ वो फिर बड़े होते हैं, वो उस पैटर्न के साथ। बाज में सेल्फ डाउट होते हैं उनकी एडल्ट लाइफ में, एंड देन दे से कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट नो, आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू। मुझे जो है पीएचडी करनी है बट मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सो वो सेल्फ डाउट होते हैं। फिर बाज का एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। सो वो जो है जैसे कि ना, उनको ये होता है कि यार ये जो किस्मत है ना, ये जो है ये बस करता धरता है, फेट जो है वो डिसाइड एवरीथिंग। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सोसाइटी ऐसी है, सिस्टम ऐसा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे हस्बैंड जो है ऐसे हैं, बाज जो वाइफ्स आती हैं जिनका रिलेशनशिप स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे कि ओ माय हस्बैंड इज डूइंग दिस, दैट्स व्हाई आई कांट डू दिस। कुछ जो है इवन एडल्ट भी होते हैं, वो कहते हैं हमारे पेरेंट्स इस तरह से हैं, इस वजह से मैं इस तरह से नहीं कर पा रहा। सो जैसे कि उन्होंने अपना कंट्रोल जो है, रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे दिया होता है, एंड देन वो फिर इनको डिसएम्पावर करता है। बाज़ औक़ात मैंने काफी, मतलब वो स्पाउसेस में रिलेशनशिप इस तरह से होता है कि स्पाउस कहती हैं कि मेरे हस्बैंड है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस। मेरी खुशी जो है ना डिपेंड कर रही है मेरे हस्बैंड पे, अब वो मुझे खुश रखें, और उस तरह से। सो एक तरह से अपने आप को डिसएम्पावर करना। फिर अनहेल्थी कंपैरिजंस है, जिनको लो सेल्फ एस्टीम होती है, जिनको सेल्फ डाउट होते हैं, फिर वो जो है अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। एंड व्हाई आई हैव मेंशन अनहेल्थी कंपैरिजन, समटाइम्स मतलब देयर आर हेल्थी कंपैरिजन जिसमें कि हम इंस्पायर होते हैं, एंड देन दैट इज मोटिवेटिंग, और उसमें हम अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझते, हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ओके हाउ एम आई डूइंग इन माय लाइफ, ओके आई शुड डू दिस, विदाउट गोइंग इनटू सेल्फ डाउट या लो सेल्फ एस्टीम। लेकिन अनहेल्थी कंपैरिजन किस तरह से है कि दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करना और फिर सोचना ओ आई एम अ फेलियर, एंड देन नेगेटिव इमोशंस आना, जेलिसी आना, या एंगर आना। सो इस तरह से। फिर एक और चीज है फियर ऑफ फेलियर। सो कोई भी चीज करने से पहले घबराना, नहीं आई माइट फेल इन दिस, बिफोर गोइंग इनटू एनी रिलेशनशिप, ओ इट माइट नॉट वर्क। कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, नहीं मेरा फेल ना हो जाए। जॉब में टॉक्सिक इन्वायरमेंट है एंड सम पीपल वांट टू चेंज द जॉब, लेकिन उनको फिर ये है कि नहीं, अब क्या पता वो अगली जॉब जो है वो भी इस तरह से हो, वहीं वहां वहां पे मैं फेल हो जाऊं, इस तरह से। दूसरा जो डिसएम्पावरिंग पैटर्न है, रिस्क अवर्जन। सो बाज लोग जो है वो दे वांट टू स्टे इन कंफर्ट जोन, ये मेरा कंफर्ट जोन है, बस नहीं करना। कोई भी चैलेंजिंग चीज आएगी ना, वो उससे दे वांट टू रन अवे फ्रॉम इट। एंड सो आई हैव सीन सम पीपल यू नो सेल्फ सबोटाजिंग देयर लाइफ। उनके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन क्योंकि उनको बहुत खौफ है, डर है, सो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो सेफ साइड पे रहना चाहते हैं। सो इस वजह से उनके हाथ से अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। बाज के इमोशंस, बाज को इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता, डिसरेगुलेटेड इमोशन होते हैं। अब डिसरेगुलेटेड इमोशन दो तरह से, कि एक तो इमोशंस जो है या तो बहुत ज्यादा सप्रेस्ड है, कि हर्ट है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, या किसी चीज पे गुस्सा है, तो उसको एक्सप्रेस नहीं करना, हेल्थी वे में कन्वे नहीं करना, उसको दबा देना, रिप्रेसिंग देयर इमोशंस। एंड वो फिर क्रिएट करता है नेगेटिव एनर्जी को, और वो देन इट क्रिएट्स डिसएम्पावरिंग पैटर्न्स। या फिर जो इमोशंस है इतने डिसरेगुलेट होते हैं, उसमें इतनी हाई इंटेंसिटी होती है कि वो फिर जो है
it creates rift in the relationship, it creates problem in the workplace, work environment. So वो उनको गुस्सा आएगा तो वो फट पड़ेंगे। उनको अगर किसी चीज पे सैडनेस है तो देन दे विल स्टे इन दैट सैडनेस फॉर सच लॉन्ग टाइम कि वो फिर डिप्रेशन में हो जाएगा। किसी चीज से फियर है लेकिन इतनी इंटेंसिटी में है कि वो फिर जो है एंजाइटी मतलब बन जाता है। सो डिसरेगुलेटेड इमोशन। उसके बाद नेगेटिव थिंकिंग है। नेगेटिव थिंकिंग भी दो तरह से कि बाज नेगेटिव थिंकिंग इज आइदर इट्स अबाउट पास्ट और इट्स अबाउट फ्यूचर। सो पास्ट में ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मेरी लाइफ में इस तरह से क्यों हुआ, फला ने इस तरह से क्यों बोला। सो जस्ट स्टेइंग स्टक इन द पास्ट एंड देन थिंकिंग अबाउट इट, वो नेगेटिव स्पाइरल में जाना, नेगेटिव थिंकिंग। या फिर अबाउट फ्यूचर कि ये होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सो दे जस्ट गो ऑन इन दिस नेगेटिव थिंकिंग स्पाइरल। उसके अलावा एक जो साइन है वो है लिमिटिंग बिलीफ का कि यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ओ मैं ये तो नहीं कर पाऊंगी, ओ आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट डू दिस, आई एम अनेबल टू डू दैट। सो वो लिमिटिंग बिलीफ्स जो है वो फिर इस तरह से एक पैटर्न बना लेते हैं। अब क्या होता है हमारी लाइफ में बाज औकात समटाइम्स कॉन्शियसली वी वांट टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ, ठीक है, लेकिन येट समथिंग ऐसे फील होता है समथिंग इज गेटिंग इन आवर वे। जैसे कि बाजू का लगता है देयर इज सम रेजिस्टेंस इन अस, और देयर इज सम फियर, देयर इज समथिंग स्टॉपिंग मी, देयर इज समथिंग देयर बट आई डोंट नो। और ये जो आई डोंट नो वाला जो सवाल होता है, ये जो कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन दूर होती है जब हम समझेंगे कि हमारा माइंड किस तरह से काम कर रहा है। सो एक जैसे आप इमेजिन करो, एक एनालॉजी लो। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका एक्सीलेटर पे पाँव है एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, और आप स्पीड से जाना चाह रहे हैं लेकिन आपका दूसरा पाँव ब्रेक पे है। एंड सो देर इज समथिंग विच इज लाइक विच मेक्स यू स्टक इन लाइफ। सो अब इस चीज को समझने के लिए, सो व्हाट हैपेंस इज दैट हमारे माइंड में हमारा जो माइंड है वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है। सो आई हैव जस्ट मेंशन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस है क्योंकि जो हमारा एनएलपी के जिस तरह से और काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की। सो सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सो कॉन्शियस माइंड जो है, एक तो हमारा जो माइंड है ना वो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, इन तीन चीजों का, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सो कॉन्शियस माइंड तकरीबन 5 to 10% कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस भी अराउंड इतना, एंड देन 80 to 85% हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। सो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो हमारी अवेयरनेस है, जो मैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में आई एम अवेयर। सो इफ यू लुक अराउंड, ओके यू आर लिसनिंग, योर साउंड है, व्हाट आर यू हियरिंग, व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू परसीविंग, आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, हाउ मच यू आर इवेल्युएटिंग, आप इंफॉर्मेशन कितनी परसीव कर रहे हैं, आप प्रोसेस इंफॉर्मेशन को कैसे कर रहे हैं, इवेल्युएटिंग द डाटा एंड देन मेकिंग डिसीजंस, लॉजिकल रीज। और आप जो है फिर आपका कॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करता है चॉइसेस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सिचुएशन को एनालाइज करने में। लेकिन ये हमारा सिर्फ 10% होता है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें होती हैं जो कि बिल्कुल अभी मेरी आपकी अवेयरनेस में नहीं है, लेकिन अब अगर जब मैं आपसे पूछूंगी, सो दे आर देयर। एंड जब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओगे तो दे विल कम इनटू योर अवेयरनेस। इफ आई आस्क यू के ओके फला फ्रेंड की बर्थडे कब है, या उस जमाने में उस ईयर में आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते थे, थिंक अबाउट दैट। सो यू विल जस्ट थिंक, थोड़ा सा जोर दोगे एंड देन वो इंफॉर्मेशन आपके उसमें अवेयरनेस में आ जाएगी, कॉन्शियस अवेयरनेस में। एंड वाई आवर माइंड इज लाइक दैट, इट्स बिकॉज अगर सब चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड में होती तो वो हम जो है बिल्कुल ही ओवरवेम होके हमारी जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल जो है वो काम ही नहीं कर पाती। क्योंकि इतना हमारा माइंड में इतनी कैपेसिटी नहीं कि हर चीज जो है वो 100% हमारी कॉन्शियसनेस में हो। इफ एवरी सिंगल थिंग वी रिमेम्बर फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, हर चीज, सो वो हम फिर जो है लाइफ में हम फंक्शन ही ना कर पाए। सो दिस दैट इज व्हाई आवर माइंड इज लाइक दैट। सो वो जो है, अब अनकॉन्शियस माइंड पे आते हैं। अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी अवेयरनेस में नहीं है। इसमें मेमोरीज स्टोर होती हैं बचपन से लेके, इवन जब हम नॉन वर्बल होते हैं, इवन फ्यू मंथ्स ओल्ड। सो वो हमारे
अनकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होती जाती हैं। हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारे रिप्रेस्ड इमोशंस हैं। और अब ये सब चीजें जो है ना, जो मेमोरीज हैं सारी, और आप देख रहे होंगे इसमें कि ना, इट्स लाइक अ ग्लेशियर। सो टॉप जो है वो जो विजिबल है, इट्स जस्ट 10%, और जो नीचे है वो 90% है, एंड इट्स अंडर द सर्फेस एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। दैट्स व्हाई इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक अ ग्लेशियर, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। लेकिन इट कंट्रोल्स अस। It is the reason this subconscious unconscious mind influences our thoughts and behavior. बाज़ औक़ात हमें ये फील होता है, एंड सम क्लाइंट्स ऑफ माइन जैसे कि मुझे पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है, ये इतनी सी चीज पे पता नहीं क्यों मैं ट्रिगर हो गई, पता नहीं आई रिएक्टेड लाइक दैट, पता नहीं मुझे डर क्यों लगता है, मुझे नहीं समझ में आता मैं ऐसे क्यों हूँ। सो वो कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है, बट these are the past experiences, these are the stored memories which are influencing थॉट्स एंड बिहेवियर्स, और जिसकी वजह से फिर हमारे जो है एक्शंस उसकी बुनियाद पे होते हैं, हमारे डिसीशंस उसकी बुनियाद पे होते हैं। सो अब जो है, इन जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि डिस एम्पावरिंग पैटर्न है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सो उनको अगर देखा जाए तो हम उनको चार उसमें वी कैन डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज, अगर उनको देखा जाए। सो पहले उस तरफ जाने से पहले आई वांट टू यू नो एक्सप्लेन, एक आपको मेटाफर मैं देना चाह रही हूँ। सो थिंक अबाउट सन, सूरज। अगर मैं सूरज का बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? एंड आई बी क्वाइट फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स। सो बास के दिमाग में आ रहा होगा रोशनी, हरारत, हीट, वार्मथ, लाइट, एनर्जी, काफी चीजें। सो अगर सन का आप सोचें तो ये चीजें दिमाग में आती हैं। वॉट इफ घने बादल जो है वो सूरज के सामने आ जाए? हाउ अबाउट दैट? क्या उसकी वो हरारत उतनी रहेगी? क्या उसकी वो तपिश इतनी रहेगी? क्या उसकी वो लाइट इतनी रहेगी? नो। सो वो जो है, जैसे अब जो सूरज था वो अपने फुल पोटेंशियल पे आबोताब से चमक रहा था, बट जब बादल आ गए तो वो उसके वो ना रहा। सेम वे हम इंसान इस तरह से हैं। वी हैव हिडन पोटेंशियल्स विच वी आर अनअवेयर ऑफ, और हमारी जो है इर्द गिर्द जैसे एक बादल से आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी अपनी रोशनी मद्धम पड़ जाती है। एंड वो हमें जो है, वी फील स्टक इन लाइफ, वी don't know why we are unable to achieve our goals, we don't know why our relationships are not nurturing or fulfilling, why we are not able to live our life according to our full potential. सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का 4 क्लाउड्स मॉडल है। सो यू विल बी सीइंग solution exactly. So I'll tell you first. Let's see कि why what's happening. जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तो फिर उसके बाद जो है हम सॉल्व करने पे आएंगे। सो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशन, इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड लिमिटिंग बिलीव्स हैं। सो लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं? लिमिटिंग बिलीव्स जो है हमारे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक है। लेकिन ये आते कहाँ से है? दिस इज अनकॉन्शियस, वी आर अनअवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। और ये क्रिएट किस तरह से होते हैं? जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि जब बचपन में जिस तरह से जब अपब्रिंगिंग होती है, सो उसमें अगर बच्चे को ये फील हो, मिसाल के तौर पे, इफ द पेरेंट्स आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू द चाइल्ड, नॉट वैल्यूइंग द चाइल्ड, नॉट लिसनिंग टू द चाइल्ड, तो बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक, बच्चे होते हैं ईगोसेंट्रिक, मतलब दे अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम थ्रू देमसेल्व्स। कि अगर मिसाल के तौर पे अगर माँ बाप में डिवोर्स हो गई, then I am bad. There must be something wrong with me. That's why my parents are fighting. There must be something wrong with me. That's why they are not paying attention to me. So इस तरह से, और उससे जो है फिर वो लिमिटिंग बिलीफ्स बनते जाते हैं। किसी का होता है आई एम नॉट गुड इनफ, और आई एम नॉट गुड इनफ उन बच्चों का होता है जो कि फिर एडल्ट लाइफ में भी शो होता है, जो कि जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, जजमेंटल होते हैं, उनको बहुत ज्यादा मतलब रिडिक्यूल किया जाता है, मे बी एल्डर सिबलिंग्स हो या जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, कोई भी हो सकता है पेरेंट्स के अलावा, और भी द पीपल अराउंड जो भी केयर गिवर्स हैं, इवन टीचर्स हैं क्या।
सो डिपेंड्स अपॉन हाउ द चाइल्ड परसीव द एक्सपीरियंस, हाउ सेंसिटिव दे आर, तो वो उसको जो है इंटरनलाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो बिलीफ बना लेते हैं। और मतलब और मेरे पास क्लाइंट्स इस तरह से आते हैं कि मुझे तो बोलना नहीं आता, मुझे नहीं पता, मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता, नहीं आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, तो कोई बात नहीं, इस तरह से होगा तो इट इज ओके, इट इज फाइन। सो दीज लिमिटिंग बिलीव्स वो जो है चाइल्डहुड से आते हैं। इनमें कोई रियलिटी नहीं होती। दिस इज द स्टोरी दैट अ चाइल्ड हैज क्रिएटेड बिकॉज दे वांट टू मेक द सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। सो वो अपने आप पे वो करते हैं कि अच्छा मैं इस तरह से हूँ, इस वजह से मेरे इर्द गिर्द इस तरह से हो रहा है। सो ये जो है एक तरह से एक लेंस बन जाता है जिससे हम अपने आप को और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देख रहे होते हैं। और उसी लिमिटिंग बिलीव्स के साथ जो है एडल्ट लाइफ में मतलब व्हेन दे कम, सो वो फिर दे मैनिफेस्ट इन दीज इन दिस एम्पावरिंग जो है पैटर्न्स में आ जाते हैं। आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, आई एम टू यंग फॉर दिस, आई एम नॉट केपेबल इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, यू नो, सो आई कांट अर्न मनी। सो ये जो है लिमिटिंग बिलीफ्स एक वन ऑफ द रीजन है, इसका क्लाउड है जिसकी वजह से। और फिर लिमिटिंग बिलीफ से जो है नेगेटिव थिंकिंग जनरेट होती है और ये स्टेटमेंट्स बनते हैं। ठीक है। एंड अगेन आई विल रिमाइंड दिस कि दिस इज नॉट इन कॉन्शियसनेस अवेयरनेस, दिस इज इन इन अनकॉन्शियस। और ये तब होता है व्हेन वी एक्सप्लोर थिंग्स, व्हेन वी गो बैक एंड वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, तो फिर वो ये सामने आता है। और बाज़ औक़ात लोग ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जिस तरह से ये जुमले होते हैं, उनसे भी पता लगता है कि उनकी ये, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। इट्स जस्ट बिकम्स देयर ऑटो पायलट कि वो उस पर चल रहे होते हैं एंड देन दे जस्ट से दीज थिंग्स। उसके बाद है नेगेटिव थिंकिंग। सो इन लिमिटिंग, जी जीशान, बिल्कुल। एंड जैसे कि मैंने शुरू में मेंशन किया कि यू आस्क मी कि हाउ टू ओवरकम दिस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सहरिश। सो इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि दिस इज अ सीरीज, ठीक है, 5 जो है वो इसमें वर्कशॉप्स होंगी। सो दिस वन is just the introduction, this is just the setting the stage, so we should know deeper level पे कि क्या हो रहा है। एंड when कुछ हम इसको हम टच अपॉन भी करेंगे, लेकिन इन दिस बिल्कुल थोड़े से टाइम में मैं नहीं कर सकती। सो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो चारों क्लाउड्स हैं, एंड ईच एंड एवरी क्लाउड वी विल टेक एंड देन वी विल गो डीपर, how to overcome that, how it influences our life and how to overcome that, strategies वगैरह। so inshallah we will cover that। so negative limiting beliefs जो है फिर वो नेगेटिव थिंकिंग जनरेट करते हैं। ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग से वही मोटिवेशन नहीं होती, पुअर डिसीजन मेकिंग होती है, वो हम अपने स्पायरल में जा रहे हैं कि अच्छा ये हो गया तो वो हो गया, क्या होगा, उसी चीज पे जो है हमारे स्टकनेस हो जाती है। आम लाइफ में एक दिन में एक पर्सन को 60,000 जो है थॉट्स पर डे आती हैं। अब अगर डिसएम्पावरिंग थॉट्स ज्यादा होंगी ना पॉजिटिव से, तो वो फिर हम स्पाइरल में चले जाते हैं एंड देन वो फिर हमें डिसएम्पावर करते हैं। एक नेगेटिव थॉट लीड्स टू अनदर नेगेटिव थॉट, उससे कंफ्यूजन होती है, सेल्फ डाउट आते हैं। अब नेगेटिव थिंकिंग फिर क्या जनरेट करती है? लिमिटिंग बिलीफ्स जनरेट करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग जनरेट करती है नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस खुद जो है ना गुड होते हैं ना बैड होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ मैसेजेस हैं। मैसेजेस हैं कि भाई देयर इज समथिंग which you are not paying attention to and do something about it, so it's like emotions, energy in motions। so इमोशंस जो है वो एनर्जी हैं, और तभी जब इमोशंस को रिप्रेस किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, दैट्स व्हाई बीमारियां होती हैं, बिकॉज दे आर एनर्जी एंड व्हेन द एनर्जी ट्रैप्ड इन आवर बॉडी, तो इमेजिन कि वो फिर बॉडी में किस तरह से जो है वो उसको नेगेटिव जो है अफेक्ट कर सकती है। सो जो इमोशंस है वो हमें बताते हैं कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट है इन योर लाइफ विच यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू। ठीक है। अगर हम इमोशंस को प्रोसेस नहीं करेंगे, उनको हेल्थी वे में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो वो हमारी बॉडी में ट्रैप हो जाए। और जब या तो हम उसको रिप्रेस कर देते हैं या फिर बहुत इंटेंसिटी के साथ उसको जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, और ये दोनों जो है वो अनहेल्थी है। दे हार्म आवर बॉडी, दे हार्म आवर मेंटल हेल्थ, दे हार्म आवर रिलेशनशिप। अब जो एंगर है, सैडनेस है, गिल्ट है, हर्ट है, बिट्रेयल है,
एंजाइटी है, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन दीज इमोशंस आर नॉट, they themselves are not negative. So anger might be telling you they are messengers. You should just listen to them. Anger might be telling you, okay, there might be some boundary that has been crossed. कोई आपकी जो है बाउंड्री की वायलेशन हुई है, आपकी कोई नीड जो है, बेसिक नीड अनमेट रह गई है, समवन इज नॉट मीटिंग योर नीड, सैडनेस है, सैडनेस इज टेलिंग यू देयर माइट बी समथिंग विच यू आर नॉट प्रोसेसिंग, विच यू आर नॉट कन्वेइंग या एक्सप्रेसिंग। गिल्ट है, गिल्ट का मतलब कि भाई there is something you might have done which is not aligning with your value and do something about it. लेकिन हम इसको भी जब हम मैं नेगेटिव इमोशन क्लाउड को जब हम कवर करेंगे तो हम उसमें डीपर जाएंगे। गिल्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव गिल्ट भी होता है, हेल्थी एंड अनहेल्थी होता है। सो नेगेटिव इमोशन से बाज औकात जो है वो इतने इंटेंस होते हैं इमोशंस के, जब वो उस पे हम एक्शन ले लेते हैं तो बाद में हमारे लिए वो शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, एंड देन वी रिग्रेट अबाउट इट एंड वी डोंट नो कि हुआ क्या। सो उसके बाद है एक जो अनदर जो क्लाउड है, इनर कॉन्फ्लिक्ट है। सो इनर कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से होते हैं? इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड अस, जो कि हमारे पार्ट्स के दरमियान होता है। ठीक है, कि अगर एक पार्ट जो चाह रहा है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, मतलब आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, एंड सो एक मैसेज है, या आई वांट टू शेयर विद एवरीवन, प्लीज 5 मिनट्स के बाद ज्वाइन द लिंक अगेन टू फर्दर फॉर आवर वर्कशॉप। क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे और जो है वो फीडबैक सेशन होगा। सो इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो भी जो है हमें रोकता है, वो भी डिसएम्पावरिंग करता है। पास कहते हैं कि यो आई वांट टू क्विट दिस जॉब, दिस इज वेरी टॉक्सिक इन्वायरमेंट, बट देन पता नहीं अगली जॉब कैसे हो। और फिर वो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, मुझे मनी भी सेव करनी है। सो इट्स लाइक टू पार्ट्स विच आर इन कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर। लिमिटिंग बिलीव्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं? वो हमारे जो जिस तरह से गोल्स और ड्रीम्स हैं, वो हम फिर जो है उनको अचीव नहीं कर पाते। सेल्फ डाउट होता है, एंजाइटी है और फियर होता है। अब हम आते हैं इन once again I'll remind, please, अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाएं, प्लीज ज्वाइन द लिंक अगेन एंड देन हम फिर इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट इज एनएलपी? अब एनएलपी इसमें क्या वो करती है, किस तरह से, हाउ एनएलपी हेल्प्स अस? सो एनएलपी इज अ methodology फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन, दैट इज द मेन थिंग। और इसमें जो है वो टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं फॉर पर्सनल चेंज एंड ग्रोथ। एनएलपी हमें हेल्प किस तरह से करती है? हम अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं ताकि वो जो है देन इट स्टार्ट्स प्रोसेसिंग एंड परसीविंग थिंग्स मोर पॉजिटिवली, विच विल रिजल्ट इन एन एम्पावरिंग बिहेवियर एंड माइंडसेट। सो अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो एनएलपी का कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल बना हुआ है। सो एक्सटर्नल इवेंट कोई आता है और हमारे ब्रेन में जो है हम उसको परसीव किस तरह से कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी परसीव द इन्वायरमेंट। इसमें जो है बाज औकात हम जनरलाइज करते हैं, डिस्टोर्ट करते हैं और उसको डिलीट करते हैं इंफॉर्मेशन की, और हम फिर जरूरी नहीं कि जो हम समझ रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, वो ही रियलिटी हो। मसलन कि दो एम्प्लॉयज हैं, बॉस ने जो है उनकी प्रेजेंटेशन जो है उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि भाई इसको दोबारा जाके बनाओ, एंड क्या कर रहे थे तुम लोग, टाइम जाया किया इस तरह से। वन एम्प्लॉय टुक इट एज अ डिसरिस्पेक्ट और वन एम्प्लॉय टुक इट एज अ फीडबैक। सो जिसको डिसरिस्पेक्ट फील हुई, ही गॉट सो एंग्री, एंड बाहर निकल के उसने खूब सुनाई और उसने कहा कि ये इस तरह से है, मैं तो जॉब छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। द अदर वन वाज लाइक, ना, आई नीड टू वर्क, आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो एक ही इवेंट को दो लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से उसको परसीव किया। सो एक का पॉजिटिव था और एक का जो है नेगेटिव था। सो एनएलपी हेल्प्स इन सीइंग एंड प्रोसेसिंग एंड परसीविंग थिंग्स मोर पॉजिटिवली। हम उसको पॉजिटिव तरीके से किस तरह से वो करें। सो एक बेसिक चीज है जो कि बहुत ज्यादा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एनएलपी, इट इज कॉज एंड अफेक्ट। सो कॉज एंड अफेक्ट, कॉज मतलब है कि टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोस्टली जो हमें प्रॉब्लम होते हैं, हम एट अफेक्ट पे होते हैं। एट अफेक्ट मीन्स कि हम कहते हैं वो उसकी वजह से हुआ, नॉट टेकिंग एनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, ये जो मेरी लाइफ में इस तरह से हो रहा है ना, वो मेरे माँ बाप की वजह से हुआ, वो जो है ना मेरे हस्बैंड की वजह से ऐसे हो रहा है, वो असल में जो है ना ये हो गया। सो इट्स लाइक ब्लेमिंग, शेमिंग एंड जजिंग एंड पुटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर पर्सन। ठीक है। सो वो एट अफेक्ट में जो लोग होते हैं वो पावरलेसनेस फील करते हैं और बस उनका ये होता है कि वो ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स को करते हैं। जो एट कॉज होते हैं, दे टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, और वो कहते हैं कि ओके, आई एम द वन हु इन्फ्लुएंसेस
my action. I am the one, and I am responsible for bringing change into my life. So this is the very first step, कि आप जो है पावरलेसनेस से, डिसएम्पावरमेंट से एम्पावरमेंट की तरफ किस तरह से आए। क्योंकि जब तक हम एट कॉज नहीं होंगे, जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग चेंज इन आवर लाइफ. So empower your mind and transform your life. Believe you can, and you are halfway there. You have the power to shape your thoughts, emotions, and life. Take control of your mind, and you will take control of your life. Remember, personal growth and transformation are journeys, not destination. हमारे अपकमिंग जो है वो वर्कशॉप्स हैं, एंड आई वुड लाइक टू अनाउंस देम. अगस्त 10th पे है minimally invasive surgery and its role in psychiatric well-being. Dr. Aishara Masroor Bhatti hai and Miss Shehwar Aisha. So then there's another one, August 31st pe hai, Dr. Shahida Memon, the pregnancy journey, trimester and by trimester. थर्ड वन है ग्लूटेन फ्री डाइट फॉर सीलिएक डिजीज, डॉक्टर DN जैनब इसहाक है, और ये जो है वर्कशॉप होगी अगस्त 24th पे 2025. सो सहर है, डॉक्टर सहर है, वो जो है इसको फिर फर्दर अनाउंस करेंगी इस बारे में. जी थैंक अली. थैंक यू सो मच मैम हुमा माजिद. इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं?